بھارت کے خلاف فائنل میں 108 رنز بنانے والے طیب طاہر کے گھر اس وقت جشن کا سما ہے۔ مبارکباد دینے کے لیے لوگ اب ان کے گھر پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس وقت نمائندہ جی این این سرائے عالمگیر میں احتشام راٹھوڑ طیب طاہر کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی احتشام، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں سرائے عالمگیر کے نواحی علاقہ تھون میں طیب طاہر کے گھر میں، جنہوں نے پاکستان بمقابلہ انڈیا میں جو ایشیا کپ میں جو ہے انہوں نے 108 رنز بنا کر پاکستان کی جو ٹیم ہے انہیں جو ہے 353 رنز بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ اس وقت طیب طاہر کے گھر میں موجود ہیں، ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خوشی سے جو ہے وہ سجا رہے ہیں۔ بتائیے گا آپ کو کیا امیدیں ہیں اپنے بیٹے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیب نے بڑا اچھا میچ کھیلا جی، 108 سکور کیا ہے، ہمیں تو بڑی خوشی ہے۔ سب کی دعائیں ساتھ ہیں، ہمارے دوستوں کی، ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی دعائیں ساتھ ہیں، اور بڑا اچھا امید ہے کہ اللہ کرے اس سے زیادہ بہتر کرے اور اچھا اس سے زیادہ کھیلے تاکہ پاکستان کا نام روشن کرے۔ شکریہ اللہ کا کہ اس نے بڑا اچھا سکور کیا۔ یہ ہمارے ساتھ طیب طاہر کے بھائی بھی موجود ہیں۔ بتائیے گا آپ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے اور کتنے پر امید ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ جی سر، ہم نے بھی میچ دیکھا، بہت مزہ آیا اور بہت اچھا کھیلا سب بہن بھائی کی دعاؤں سے، تو یہ بہت خوشی ہے جو انڈیا کے خلاف کھیلا۔ ہاں جی بالکل، طیب طاہر کے بھائی کا بھی کہنا ہے کہ سارے دعائیں کر رہے تھے کہ پاکستان بمقابلہ انڈیا میں جو طیب طاہر ہے وہ پرفارمنس دکھائے، اور انہوں نے پرفارمنس جو ہے وہ دکھائی ہے۔ مبارکباد دینے والے جو ان کا تانتا بنا ہوا ہے طیب طاہر کے گھر میں، اہل علاقہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں اور جو ہے وہ مبارکباد۔ اعظم کاروباری شخصیات سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چیمبر آف کامرس، قابل احترام فیڈرل منسٹرز، آنریبل سرکاری افسران اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے معزز ممبران مجلس عاملہ اور دوسرے قابل احترام کاروباری حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور میرا مقصد یہی تھا کہ فیصل آباد جو پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکٹیویٹی کا شہر ہے، جس کو ایک زمانے میں برطانیہ کا جو شہر تھا اس کے ہم پلہ قرار دیا جاتا تھا، مینچسٹر آف پاکستان، تو آپ کی جو اس ملک کی معیشت میں جو خدمات ہیں، کنٹریبیوشن ہیں، وہ انتہائی قابل قدر ہے، اور آپ نے اپنی محنت سے، اپنی ذہنی اختراع سے اور سرمایہ سے اور کاوشوں سے آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بے پناہ آپ نے ترقی کی ہے، جس کے لیے آپ سب بے حد لائق ستائش ہیں۔ یقیناً فیصل آباد میں دوسری صنعتیں بھی ہیں، لیکن جنرلی یہ ٹیکسٹائل کا گھر ہے، اور پھر ساتھ اس کے جو ایلائڈ انڈسٹری ہے جو ٹیکسٹائل کو سپورٹ کرتی ہے، پاور لومز ہیں اور دوسرے مختلف جو ادارے جو مل کر اس صنعت کو ایک کمپریہنسو شکل میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلی دہائیوں میں بے پناہ ایکسپورٹس کی، اور اس کی قدر پورا پاکستان کرتا ہے، اور یقیناً آج یہاں پہ آپ نے جو پریزیڈنٹ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے پنجاب وفاق کی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بات کی، فیصل آباد کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کی۔ یقیناً یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فلینتھرپی کی بات بتائی، بہت اچھی بات ہے، جس طرح آپ نے یہ اخوت کے ساتھ اور آغوش آپ نے جو ادارے بنائے ہیں، یہ بہت یقیناً یہ دین اور دنیا دونوں کمانے کے مترادف ہیں۔ پھر آپ نے
यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर्स ने सवालात किए हैं, तो यकीनन 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ और फिर आपके सवालात के जो जवाबात वो मुतलका जो यहाँ पर अफसरान तशरीफ़ फरमाएँ, मैं उनको गुजारिश करूँगा उसका मुख्तसर स्ट्रेट जवाब दें। पहली बात तो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की जो सनती, ज़रई और कारोबारी मईशत का ये रीढ़ की हड्डी है और यकीनन टेक्सटाइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स में। इसमें यकीनन आपको बाज़ जायज़ आपकी मुश्किलात हैं, आपकी बहुत कंपटीशन में वो आपको हर्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर आपने बिजली के गैस के नरखों की बात की, उसमें बिल्कुल वज़न है और उसको हमने अटेंड भी किया इस 14-15 महीनों में, लेकिन फिर उसमें दूसरे ख़ारजी अवामिल थे जिसकी बिना पर हमें बहुत हमारी एक लिमिटेशन थी IMF के हवाले से। उन्होंने हमें बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया कि आप इसमें मज़ीद इसको सब्सिडाइज्ड नर्ख नहीं दे सकते। ये आपके सामने है। और फिर जो हमारा जो 18th अमेंडमेंट है वो भी एक हमारा जो आइन का हिस्सा है, उससे भी ये जो इंटर प्रोविंशियल जो इश्यूज़ हैं उनको हमें एड्रेस करना है। लेकिन ये इसमें डेफिनेटली ये मीडियम टर्म चैलेंजेस हैं और उसको इंशाअल्लाह मैं पूरा मुझे यकीन वासिक है कि जो हुकूमत अगले इंतखाबात के नतीजे में आएगी उसको अपनी फ़र्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में इन मसाइल को एड्रेस करना होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर हम इज़्ज़त और वक़ार से ज़िंदा नहीं रह सकते। फिर आपकी रेमिटेंसेस हैं, वो रेमिटेंसेस जो हैं अल्लाह ताला उनका भला करे, एक्सपर्ट्स का बड़ी मेहनत से वो दिन रात रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और पाकिस्तान अपने रेमिटेंस करते हैं, तो उससे वो काफ़ी हद तक गैप फिल होता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा गैप रह जाता है। जो आपकी अमाउंट जो हैं FBR उसको आपको टाइम पे देना चाहिए, कोई शक नहीं है, बिल्कुल। योर पॉइंट इज़ वेरी वेल मेड एंड वेरी वेल टेकन। टर्म गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद इलेक्शन में एक मैंडेट के साथ नई गवर्नमेंट आएगी, वो 5 साल का पीरियड होगा जिसमें मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को इंटरम फेज़ में भी यकीनन आपके मसाइल को एड्रेस करना उस हुकूमत का फ़र्ज़ होगा। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसको आपको भी मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात जो आपने की LCs की, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेटर ऑफ क्रेडिट अपना बहुत कंट्रोल थे। हमारी जो प्रायोरिटी थी पहली यानी फूड, दूसरी हमारी ये अद्वियात दवाइयाँ। तो आपने अभी सोलर की बात की है, इस वक्त तक पिछले देखने हमने नवाज शरीफ साहब के, आई एम नॉट एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स है, इट्स अ वेरी सीरियस कॉन्फ्रेंस, लेट अस स्टिक टू ओनली business and business alone. That is where lies our bread and butter. मगर ये फैक्ट है कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में सोलराइजेशन का अमल शुरू हुआ। अपना भावलपुर में सोलर पार्क लगा 400 मेगावाट, फिर अपना सिंध में जामपीर में विंड मिल का वहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ। वो फिर रुक गया, उसके ऊपर अपने नैब ने तहकीकात करना शुरू कर दी और हर चीज़ ठप हो गई। अगर इस सिमत में हम चलते होते और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम सियासत को एक तरफ करके इकॉनमी को मजबूत करने के लिए, ठीक करने के लिए हम सोलर की पॉलिसी को, हम विंड मिल की पॉलिसी को, हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट की पॉलिसी को हम बढ़ा रहे होते और इल्ज़ामात में इल्ज़ाम तराशी में न जा रहे होते। अगर किसी ने कोई करप्शन की है तो उसको किसी प्रोटेक्शन की मुस्तक नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट, इंसाफ पर मबनी निज़ाम होना चाहिए जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। लेकिन
उसकी आड़ में मुल्क की ज़राअत और सनत की तरक्की को अपना बेजा बेपनाह नुकसान पहुँचाना, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। मैंने एक नहीं अपना दर्जनों मीटिंग्स की, फिर प्लान बनाया 10,000 मेगावाट का कि इन फेजेस हम बाहर से भी हम लेके आए, G2G का कानून बनाया। इस दौर में इन 15 माह में G2G का कानून पास करवाया असेंबली से, ताकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर सऊदी अरब आता है, चाइना आता है, कतर आता है, UAE आता है, तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर उसमें चलें। उसके लिए हमने बड़ी एफर्ट की। वो तैयार हैं कि भाई, मगर देखते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम सियासी है तो आएंगे इंशाअल्लाह। अगर कर्ज हम उनसे बड़ी कोशिश करके उन्होंने मदद की है तो सरमायाकारी इज़ नाउ देयर, आई थिंक ऑर्डर ऑफ द डे। वो अब कर्जों मर्जों में वो बिलीव नहीं करते, वो हमें कहते हैं जनाब आएँ, फिजिबिलिटी से लाएँ, बैंकेबल हम इन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, हम मुनाफा कमाएं और आपको सर्विसेज मिले। इट्स अ विन विन सिचुएशन। फिर उसके बाद हमने अपने सरमाए से जो भी हमारे पास है, हमने बिड्स इनवाइट की सोलर के लिए। हमने रोड शो करवाया दुबई में, वहाँ पर बड़े अच्छी वहाँ से फीडबैक मिली। लेकिन जब अपने पैसों से, यानी फ्रॉम ओन रिसोर्सेज, जब बिड्स इनवाइट करूँगा जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आपकी LCA नहीं खुल रही, हम कहाँ से ये सोलर पैनल्स लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खबर से आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और रावी में मुख्तलिफ मकामात पर बहाव का सिलसिला जारी है और जिसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। शरकपुर में सैलाबी रेले से कई देहात शदीद मुतासर भी हुए। जंग में दरियाए चनाब के रेले से दर्जनों देहात ज़ेर आब भी आए। आज़ाद कश्मीर में दरियाए नीलम मस्जिद और मुतादिद घर बहा कर ले गया। अपर चित्राल में 1 किलोमीटर शाहराह दरिया बुर्द हो गई। बलूचिस्तान में दरियाए पराली के सैलाबी रेले से मुतादिद गाँव डूब गए। दरियाओं में पानी का बहाव तेज, फिर खतरे की घंटी बज गई। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, मुतासरीन की नकल मकानी का सिलसिला तेज। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 19.5 फुट से ऊपर चले गई, जिससे करीबी देहात और फसलें मुतासिर हुई। उधर शेखुपुरा में दरियाए रावी में सैलाबी रेले से शरकपुर मुतासिर हुआ। पुलिस और दीगर इदारे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सैलाब से फसलें डूब गयी। जस्टर के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की आमद में 5000 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरिया से मुल्हिका नाला डेक भी आपे से बाहर हो गया। वसी रकबे पर खड़ी फसलें डूब गयी। मुरीद के नशेबी देहात ज़ेरे आब आ गए। बहावल नगर में कई हिफाजती बंद टूट गए। दरियाए चनाब में सैलाबी रेले ने झंग के 50 देहात को लपेट में ले लिया। आजाद कश्मीर का दरियाए नीलम भी बिफर गया। सैलाबी रेला एक मस्जिद की इमारत और 3 मकानात को बहा ले गया। बलूचिस्तान में दरियाए बुराली के सैलाबी रेले से मुतअद्दिद गाँव डूब गए। जाफराबाद में बारिशों के बायस नहर में शगाफ पड़ गया, जिससे 5 देहात और फसलें ज़ेरे आब आ गयी। अपर चित्राल में 1 किलोमीटर शाहराह दरिया बुर्द हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में 9 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। चित्राल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे, गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। बलूचिस्तान में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, दर्जनों घर दुकानें मुनहदम। मुख्तलिफ शहरों में भारी जानी और माली नुकसान। मुसलसल बारिश ने चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, दीर और कोहिस्तान में तबाही मचा दी। दरियाए चित्राल का सैलाबी रेला कई घरों, पुलों, सड़कों और मवेशियों को बहा ले गया। PDMA के मुताबिक सूबे में 36 घंटों के दौरान 7 मकानात मुकम्मल तबाह, जबकि 67 मकानात को जुजवी तौर पर नुकसान पहुँचा। एक स्कूल को भी जुजवी नुकसान पहुँचा, जबकि 47 मवेशी हलाक हो गए। स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर कार में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। घरों की दीवारें गिरने से कई खानदान बेघर हो गए। सवात की तहसील बहरीन में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 अफराद जहाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। आजाद कश्मीर वादी नीलम में बरसाती नालों में तुगयानी से कई राब्ता पुल बह गए। इंतजामिया के मुताबिक बारिशों से 1 शख्स हलाक हो गया, 10 दुकानें, 2 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 18 मकानों को जुजवी तौर पर नुकसान पहुँचा। बिजली के 20 पोल भी गिर गए। फानी बारिशों ने बलूचिस्तान को भी पानी पानी कर दिया। बोलान नदी में पिंजरा पुल ज़ेरे आब आने से कोयटा से सिंध जाने वाली ट्रैफिक बंद है, जबकि सिब्बी कोयटा शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। वाशक में दर्जनों दुकानें और घर मुनहदम हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे। मरी, रहीम यार खान, बहावलपुर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में भी जलथल एक हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हैदराबाद, नवाबशाह और खैरपुर समेत अंदरूनी सिंध में मूसलाधार बारिशों से गलियां, बाजार और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। पानी कब्रिस्तानों और स्कूलों में दाखिल हो गया। शहर काट में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नॉर्थ कराची, क्लिफ्टन, बहादुराबाद, RI चंडीगढ़ रोड और टावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बादल बरसे।
बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक के 400 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची समेत कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। शहर कायद में मॉनसून का दूसरा स्पेल, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। नॉर्थ कराची, क्लिफ्टन, बहादुराबाद, आई चुंदरीगढ़ रोड और टावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बादल बरसे, जिससे गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। छुट्टी के दिन बारिश ने शहरियों के चेहरे खिला दिए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने पर शहरियों ने तामीर होने वाले बरसाती नालों को पैसों का ज़या करार देते हुए कहा कि आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर डूब जाता है। असल इम्तिहान तो ज्यादा बारिश में होगा। फिर डूब जाएगा भाई, फिर डूब जाएगा। अगर आगे ड्रेन क्लियर नहीं है तो ये अब की कम है, लेकिन अभी ज्यादा बारिश होगी तो पता चलेगा। अभी तो प्रैक्टिकल चल रहा है। मसाइल तो रहेंगे, मसाइल भी कमी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और इंशाल्लाह उम्मीद है, आसरा है कि ये मेयर कुछ करेगा। शहर में बारिश का आगाज होते ही हमेशा की तरह के इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची समेत दीगर कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने आज रात और भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। एहसान खान, GNN, कराची। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का अखराज तेज होने से नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा है। NDMA का कहना है कि 48 से 72 घंटों के दौरान मुल्क भर में गरज चमक के साथ तेज बारिश जारी रहने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से असगर हयात। जी असगर। असगर हयात से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का अखराज तेज होने से नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा पैदा हो गया। NDMA का ये कहना है कि 48 से 72 घंटों के दौरान मुल्क भर में गरज चमक के साथ तेज बारिश जारी रहने का भी इम्कान है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इसराइल का एजेंट पाकिस्तान में हार गया। इसराइल अपने एजेंटों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहता है तो अपने पास बुला ले। कराची में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए बोले कि कुरान पाक की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती ऐलान जंग है। मौलाना फजल रहमान की कॉल पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में भी मुजाहरे किए गए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। हुर्मत कुरान के लिए होने वाले मुजाहरे में कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की, शदीद नारे लगाए, इसराइल और स्वीडन के परचम को पैरों तले रौंदा। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती से सुर्ख लकीर क्रॉस की गई। अगर इस्लामी दुनिया ने अपने सफीर स्वीडन से वापस न बुलाए तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। इसराइल को बता देना चाहता हूँ कि आपने जिस एजेंट के लिए तुमने वहाँ आवाज बुलंद की है, इंशाअल्लाह तुम्हें मायूस किया भी है और तुम्हें मायूस करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना फजल रहमान ने इसराइल व पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाते हुए मजीद कहा कि उनका एजेंट पाकिस्तान में हार गया। इलेक्शन में जीते या नहीं, लेकिन मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। इसराइल जो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करता है, पाकिस्तान में एजेंटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाता है कि तुम्हारे एजेंट वो पाकिस्तान में हार चुके हैं। हुर्मत कुरान के हवाले से JUI फे की जानिब से मुल्क के दीगर शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। रावलपिंडी और पेशावर प्रेस क्लब पर होने वाले मुजाहिरों में कारकुनान की बड़ी तादाद हुई। मुजाहिरीन ने स्वीडन मुखालिफ नारेबाजी की। कैमरा टीम के साथ राशिद सिद्दीक, GNN, कराची। नाज़रीन, खबर आपको देंगे लाहौर से, जहां सर्विसेज हॉस्पिटल की ऑपरेशन थिएटर में दौरान ऑपरेशन बिजली के ब्रेकडाउन पर गफलत साबित होने पर प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल और MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर एहतशाम को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। इस मुतालिक मजीद खबरें देंगे जुल्करनैन राना। जी जुल्करनैन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में बिजली डाउन होने से जो ENT का ऑपरेशन थिएटर था, वहाँ 3 मरीज जो है मुतासिर हुए थे, जिसकी इंक्वायरी कमेटी जो है तश्कील दी गई थी, जिसे 24 घंटे में जो है वो रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में जो है वो प्रिंसिपल सिम्स और MS सर्विसेज को कसूरवार ठहराया गया है, जिनको फौरी मुअत्तल करके OSD कर दिया गया है। ये गुज़िश्ता रोज जो है वो 3 मरीज जो है वो ऑपरेशन थिएटर में थे और पेट्रोल खत्म होने में जनरेटर का तो उनको 1 घंटा जो है। सही, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मोहब्बत ने सरहद पार कर ली। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में भारतीय लड़की अंजू दीर बाला पहुंच गई। इसी बारे में बात करते हैं, शाहिद जान हमारे साथ मौजूद हैं।
शाहिद बताइए, मोहब्बत ने सरहद पार करवा दी। जी बिल्कुल, ये अंजू नामी इंडियन लड़की है जो पाकिस्तानी अपर दीर के नौजवान नसरुल्लाह के इश्क में मुब्तला होकर पाकिस्तान अपर दीर पहुंच गई है और नसरुल्लाह के साथ ये मुसलसल 3 साल राब्ते में रही और दोनों का ताल्लुक सोशल मीडिया के जरिए बना था। जो अंजू नामी लड़की है ये इंडिया से पाकिस्तान पहुंच गई है और पुलिस के मुताबिक ये 30 दिन का वीजा जो है वो हासिल किया है और कानूनी तरीके से पाकिस्तान आ गई। बहुत शुक्रिया शाहिद जान, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। गवर्नर हाउस ने मुफ्त IT कोर्सेज के एंट्री टेस्ट का तीसरा मरहला तलबा तालिबात समेत दीगर नौजवान IT के मुख्तलिफ शोबों का टेस्ट देने गवर्नर हाउस पहुँच गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे राना खालिद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची के शहरी को काबिल बनाने का अज़्म कर लिया। IT कोर्स के एंट्री टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए एक बार फिर कुर्सियां सजाई गईं। बारिश के दौरान टेस्ट देने वाले तमाम उम्मीदवारों को 10 इजाफी नंबर देने का फैसला किया गया। गवर्नर सिंध का कहना है कि ये नौजवान भी अपने घर वालों के लिए 15 से 20 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। हम $3000 वाला टेस्ट बिल्कुल फ्री ले रहे हैं। UAE और सॉफ्टवेयर हाउसेज ने इन बच्चों को नौकरियाँ देने का ऐलान किया है। तो आप देखें, ये अज़्म है इन लोगों का भी, ये भी चाहते हैं कि अपने घरों के लिए 15 से 20 लाख रुपए कमाएं। इसका एहतमाम हमने कर दिया है। $3000 का जो टेस्ट था यहाँ बिल्कुल फ्री है और मेरिट के ऊपर सारे काम हो रहे। ये सारे टेस्ट जो 5.5 लाख लोगों ने हमारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराई है, मैं यकीन दिलाता हूँ एक एक बच्चों का टेस्ट होगा। यहाँ सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। उसके बाद क्लासेस के इंतज़ामात भी मौजूद हैं और साथ साथ जिस तरह उस दिन UAE के कौंसल जनरल ने ये कहा कि मैं नौकरियाँ देने के लिए तैयार हूँ जो यहाँ से सर्टिफाइड होगा। 15,000 तलिबात और तालिबात समेत दीगर शहरियों ने मरकजी लॉन में बैठकर टेस्ट दिया। शहरियों ने गवर्नर सिंध के इस इकदाम को काबिल तहसीन करार दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं इधर टेस्ट देने के लिए और बहुत ज़बरदस्त है। मैं भी इधर टेस्ट देने के लिए आई हूँ। कामरान टिसोरी साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लाया यूथ के लिए, तो इंशाल्लाह सबको ऐसी चाहिए कि आगे आगे इस चीज़ को बढ़ाते जाएं ताकि सारी यूथ कामयाब हो सके। माशाल्लाह यहाँ आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और दूसरी बात कि लोगों को जो है वो बहुत प्यार मोहब्बत से बिठाया जा रहा है। 25 सवालात पर मुश्तमिल एंट्री टेस्ट का दौरानिया 45 मिनट का रखा गया था, जबकि बारिश की सूरत हाल के सबब आज 9 बजे होने वाला टेस्ट मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद सजाद के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।